Assalamu alaikum students. I am your mentor and today we are learning one of the most important topics for your exams. Now grab your notebook and let's start. Here's the topic: sustainability, environmental policy and planning. We will discuss that how they interrelate and how they help to protection of natural environment. So these are all related to the protection of natural environments and the promotion of sustainable protection. लाइक इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाते हैं. सो बेसिकली ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी क्या है? स्टेटमेंट. सो अ स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन environmental values and position. It can also refers to a framework for managing resources, mitigating climate change and many more. Then, environmental planning, a multidisciplinary process that involves developing and implementing strategies to protect, manage, and enhance the environment. So, sustainability planning, a plan that includes elements such as land use, transportation, energy efficiency, renewable energy, and then. So, both these terms can help business comply with regulations, improve efficiency, and becomes more attractive to customers, inventions, and patrons. Then here's a question arise: how society conserve and manage its natural resources and works to promote development. So communities plays a vital role in the conservation of natural resources and their involvement can have the impacts on well-being of human habitats and species. First one is community based natural resource management, CBNRM. This approach involves local communities managing natural resources like forest, water, fish, wildlife, and pastures through their local institutions. So CBNRM means community based natural resource management. ये एक complete topic है, इसे हम इंशाल्लाह जो है next upcoming video में complete करेंगे. अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है. सो CBNRM किसके लिए यूज़ होता है? कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. It aims to promote human well-being by developing authority for ecosystem management to the local level. Then empowering communities, community-led efforts to protect forest emphasize empowering local communities to take an active role in safeguarding their natural resources. Then partnership-based participation, this level is considered the most beneficial to natural resource management. It involves a negotiated decisions making process that considers the social and economic needs of the community as well as resource requirement. So, the local government involvement can also establish community based conservation resources to protect endangered species. For example, the panchayat or local government in Boria Khadars in Markenta established a community based conservation resources to protect the great Indian bird bustard. देन नेचुरल रिसोर्सेज है कि उसे हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं. दीज आर नेचुरली अकलिंग सब्सटेंसेज दैट आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल इन द रिलेटिवली ununiform natural form, any part of our natural materials that man can utilize to promote the welfare may be recommended as a natural resource. So classification natural resource जो है वो दो तरह की है, as you know, renewable resources and नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल के कौन से हैं? ये आगे फिर इसकी दो कैटेगरीज हैं. एक वो होते हैं जो एग्जॉस्टेबल होते हैं, दूसरे वो जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं. ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल में क्या है? विंड, वाटर, सनलाइट वगैरह. और एग्जॉस्टेबल में क्या है? सॉइल, बायोडाइवर्सिटी और वाटर वगैरह. ठीक है, ग्राउंड वाटर. फिर नॉन रिन्यूएबल के आगे क्या फॉर्म्स हैं? सारी कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. लेकिन हैं क्या? नेचुरल रिसोर्सेज. कोल, पेट्रोलियम सारा. ठीक है, ये हम नेचुरली करते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम जो है उसको यूज़ करते हैं. सो हमारी अर्थ जो है वो इन सारी चीज़ों से माला माल है. ये जब भी हम चीज़ें डिस्कस की इसमें बाकी आप और चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं. टिम्बर हो गया, डिफरेंट फ्यूल्स हो गए, डिफरेंट एनर्जी के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं किस में? नेचुरल रिसोर्सेज में. देन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए? इट अप्रोचेस कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द काइंड एंड राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहले नंबर पे प्राइवेट प्रॉपर्टी रिजाइम. इंडिविजुअल कोई भी बंदा इसको रन कर रहा हो सकता है. ठीक है, इंडिविजुअल ओन. देन कॉमन प्रॉपर्टी रिजाइम, गवर्नमेंट ओन, ये गवर्नमेंट की होती है हमेशा. फिर नॉन प्रॉपर्टी रिजाइम, लेक फिशरी वगैरह. फिर स्टेट प्रॉपर्टी रिजाइम, नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क. ठीक है, स्टेट की प्रॉपर्टी वो होगी ना जो गवर्नमेंट लेवल पे है. तो फिर बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स, नेशनल फॉरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं नेचुरल रिसोर्सेज में. देन रिलेशनशिप ऑफ कल्चर, नेचर एंड रिसोर्सेज. इन चारों में क्या रिलेशनशिप है? कल्चर, नेचर एंड रिसोर्सेज में.
कि जितनी भी हमारी नीड्स हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए होती हैं, एक इंसान को चाहिए, इंडिविजुअल की नीड है या फिर एबिलिटीज़ हैं कि वो चीज़ परफॉर्म हो सकती है, तो ह्यूमन और नेचर जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट करते हैं, कल्चर को लेके, रिसोर्सेज को लेके, ठीक है। Causal function of threat on NRM, naturally staff, development pronouns as the nature resource basin, encroachment on natural resources, and exploitation. Then human introduced disasters causing stress on natural resources, threats on NRM, wrong and faulty approaches. Management of human resources politically and policy based. Then efforts for biodiversity conservation, क्या क्या efforts हुई? Dr. M.S. Swathinian in 1983 suggested that following categories for the protection of biodiversity conservation, like कल्टिवेटेड वराइटीज़ इन करंट यूज़, ठीक है, हम क्या करें, डिफरेंट वराइटीज़ को कल्टिवेट करें जो क्या होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं. देन प्रिमिटिव कल्टिवेट्स और लैंड रेसेस, उसको हम देखें. फिर वाइल्ड स्पीशीज़ ऑफ पोटेंशियल वैल्यू टू मैन. फिर कंजर्वेशन भी दो तरह से होती है, इन सिचु कंजर्वेशन और एक्स सिचु कंजर्वेशन. इसका क्या मतलब है, एक्स सिचु का क्या मतलब है कि जब हम एक्सटर्नली जो है वो देते हैं किसी को, यानी कि एक्स सिचु कंजर्वेशन क्या है कि जिसमें हम कंजर्वेशन देते हैं किसके अंदर, जब वो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, एक्स सिचु अंडर कंट्रोल कंडीशन. और इन सिचु कंडीशन कंजर्वेशन क्या है कि कंजर्वेशन अंडर नेचुरल कंडीशन, कि हम सारी जितनी भी नेचुरली कंडीशंस होती हैं, जितनी लाइट चाहिए उनको, जितनी स्पेस चाहिए, जितनी जिस तरह की वो खुराक खाते हैं नेचुरली तौर पे, ठीक है, वो सब कुछ प्रोवाइड करें. तो ये बेसिकली डिफरेंस है इन सिचु और एक्स सिचु में. सो इन सिचु इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेटिव इकोसिस्टम, ठीक है, नेटिव इकोसिस्टम. इट अपील्स ओनली टू वाइल्ड फॉन्सेस एंड फ्लोरा एंड फ्लोरा, ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पे कि हम कोई स्पीशी है, हम चाहते हैं कि हम उसको कंजर्व करें, लाइक एनिमल की कोई स्पीशी है, ठीक है, प्लांट की भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल की, तो हम चाहते हैं कि कोई एनिमल को हम वो ख़त्म होता जा रहा है, एंडेंजर्ड होता जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये ख़त्म ना हो, बल्कि इसकी क्या हो, नेचुरली तौर पर ये ब्रीड करे, ठीक है, रिप्रोडक्शन करे, और फिर जो है इसके आगे नस्ल जो है वो हम उसको कंजर्व कर सकें. तो सम टाइम हम इस तरह का करते हैं जहाँ पे वो पहले से रह रहे हैं, ठीक है, जो भी उनकी कम्युनिटी है जहाँ पे वो रह रही है स्पीशी, हम वहीं पे ही उसको क्या करते हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, वहाँ पे बाहर लोगों का जाना भी जो है वो मना कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. और फिर उसे क्या करते हैं, नेचुरली सारी उन्हें दे के और फिर उनको क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं. और एक्स सिचु के अंदर जो है वो हम खुद से सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियली, और फिर कंजर्व करते हैं उस स्पीशीज़ को. So, in situ conservation aims at prevention of land races with wild relatives. Then, ex situ conservation is drive through establishment of gene banks. It is chief made for preservation of genetic resources, seeds, plant cells, tissues, organs, and preserved under appropriate conditions. Then, resources management or resource development is economic use of resources to achieve minimum waste, sustainable use of economic resources, multipurpose use of resources, integrated planning in the use of natural resources, location of the industries with a view to reducing transfer cost in the minimum. Then planning for resources use, these are namely agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry. ये सारी भी क्या हैं, डिफरेंट प्लानिंग्स हैं रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने के लिए. यानी एग्रीकल्चर क्या, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट देखेंगे वेज क्या क्या हैं, किस तरह हम बेहतर तरीके से जो है फसलें उगा सकते हैं, उनकी पैदावार के अंदर जो है इजाफा कर सकते हैं या बेटरमेंट ला सकते हैं. इसी तरह हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री सारी चीज़ें शामिल हैं. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will do the topic that human dimensions in natural resource management. और अभी जो हमने डिस्कस किया CBNRM यानी कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह. सो आज के टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.